Very good evening to all the members of Society for Tax Analysis and Research. Friends, in this particular monthly meeting, we will be discussing the recent updates. We will be looking into certain very important decisions from the Honorable High Court and Supreme Court. And we will be also discussing the issues which have been faced by the members in the past 1.5 months. The meeting will be deliberated by Jaspalji, myself, Suresh Agarwalji, and most probably Rahulji will also be there. We are hoping that Manojji will also be joining, and I can see Vijayji is also with us. So on some very crucial aspects, we will be taking the inputs from Vijayji also. I hope Vijayji is there in the meeting. The amnesty scheme which has been announced by the government in terms of the late filing of certain forms, specifically the annual returns and GSTR4, relief has been given again as a one-time measure to all the persons who have not filed their returns in the past, and also in terms of the registration which has been cancelled. All the registrations have been cancelled, and the orders was dated prior to 31st of December 2022. Those particular people have also got one-time relief respite that they can regularize their returns and they can regularize their registration. So all these intricacies in terms of GST, we will be speaking. Sureshji will definitely be enlightening us on all these aspects. While I'll request Jaspalji to take up the income tax updates. But along with that, there is a lot of action also which is happening in under 148. I understand it is too early to ask Jaspalji for the expert comments because the SLP has been shared yesterday only. But still, I would say that whatever inputs, whatever on the platter we have as of now, let's discuss that, and we will take up this particular topic specifically on Saturday also when we have a specific meeting. Is Saturday a specific meeting society रख रही है, which is on the audit trail maintenance by the private limited companies, which is effecting from 1st of April 2023. So that particular requirement for the private limited company, I think this is very, very crucial. We got a lot of requests from the members to keep a meeting. The meeting will be deliberated by the respected CCM of ICAI, Mr. Pramod Jain. So he was kind enough that he will be deliberating on this particular very crucial issue. उसमें क्या-क्या requirements हैं, अगर हम उसकी compliance नहीं करते हैं, तो उसके consequences क्या हैं? Apart from that, we will also be looking at that this particular aspect, how this aspect will be taken up by the other authorities. So by other authorities, when I mean income tax and GST. Now, search survey has become a part and parcel of life in many of the aspects. So if the assessee, who is a private limited company, is being searched by either an income tax authority or for that matter the GST authorities, does this Company Act requirement can play any kind of detriment in these particular inquiries also? So these are some questions which we will take up on Saturday. But as of now, let me first invite Jaspal Singh ji for his deliberation on the recent updates and if any important case law he want to discuss for that matter in income tax. So I request Jaspal bhai to take over, please. Thank you, Gaurav, and a very good afternoon to all the members. Well, as introduced by Gaurav, today I'll be taking up some updates. Although there is not much in regard to the updates, but yes, of course, we'll be taking it up. And there are some changes which were brought in by the Finance Act, which are effective from 1st April 2023. थोड़ा सा उस पे discuss करेंगे. And this will also be taking up just basic remarks on the 148 Supreme Court order of yesterday. Anyways, to start the deliberations, the first update that I have is that there was a circular number 3 of 2023 dated 28th of March regarding the consequences of PAN becoming inoperative.
as per the newly substituted Rule 114AAA. तो सर दिस सर्कुलर हैज बीन ब्रॉट इन, बहुत टाइम से आधार को पैन के साथ लिंक करने की बात चल रही है डिपार्टमेंट में, एंड over the years rather it was always the time to link the two have been extended. Now it has been taken up to a different level, and they say that in those cases the PAN is not linked to the Aadhaar, certain facilities available to the assessees will be taken away. So according to the circular, the PAN, if a PAN is not linked to a Aadhaar, the following consequences will apply, and the PAN will be noted as a inoperative PAN. So the consequences that are listed in the circular are refund of any of the tax or any part thereof if it is due to the assessee, it will not be given to the assessee. Interest shall not be payable to the assessee. So if in case there is a refund और उसके ऊपर कोई 234 के अंदर कोई इंटरेस्ट हमें मिलना है, that interest will also be stopped for the period till the time the PAN is not linked to the Aadhaar, and once it is relinked, then and after the PAN becomes operative, उसके बाद का interest calculate होगा. So this is another deterrent which has been added to the non-linking of the Aadhaar. Then the third consequence is where the tax is deductible. So this is very, very dangerous. TDS जहां पे applicable होता है normal rates की जगह, अगर section 206AA या 206CC के अंदर in case of tax collection at source, अगर वहां पे you become a defaultee, then the rates of PAN are either double or up to a maximum of 20%. So again, a very, very big consequence. Anybody who is not linking his PAN to his Aadhaar, it is of serious consequences. Of course, everybody is seeing some practical difficulties in the linking, जहाँ पे phone numbers updated नहीं है या जहाँ पे name mismatches आ रहे हैं. But my suggestion to everybody is that we should get this done as quickly as possible. Now, the only thing that remains as a controversy here is कि इसको करना PAN link करना जरूरी है. Now, all residents who are taxpayers in India are required to be to have the Aadhaar and to link it with the PAN. Now the question arises कि जहाँ पे non-resident Indians हैं या जहाँ पे कोई job के लिए बाहर चला गया है, वहाँ पे उसको PAN उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए वो बाहर गया हुआ है, उस पीरियड के लिए वो अपना PAN और उसके बाद आधार नहीं है for some reason, तो उसके लिए वो लिंक करना जरूरी है कि नहीं. Now इनकम टैक्स भी हम पढ़ लेते हैं और हम इसको आधार एक्ट भी मैंने पढ़ के देखा. Who is required to take PAN? Income tax says whosoever is allotted a Aadhaar as per the Aadhaar Act, Section 3 of Aadhaar Act. Now, Aadhaar is required to be taken by a resident who is in India for more than 182 days or more in the preceding year. Now, this is not as per Income Tax Act. The resident word is not as per Income Tax Act, but as per Aadhaar Act. Now, this is a small controversy here कि कोई एक ऐसा पर्सन निकल के आता है जिसने आधार नहीं लिया है या जिसको आधार लेने की जरूरत नहीं है, तो उसका यहाँ पे क्या होगा? I think some clarifications can also be issued here. And प्रॉब्लम मेरे हिसाब से वहां पे आएगी जो लोग बाहर जा रहे हैं और जिनके पास आधार नहीं है या वो लिंक नहीं कर पाए हैं, या ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आधार है, उनके फोन नंबर्स अपडेटेड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ देयर एब्सेंस फ्रॉम इंडिया in the current year, they are not able to get the Aadhaar corrected also, and ultimately not able to link the PAN to the Aadhaar. Now, this is a problem area, but in my opinion, if we can somehow intimate the residency status. Now, I don't know whether there is any facility available on the portal for declaration as a non-resident, unless and until I'm required to file a return in the as a non-resident while I'm away. तब तक मेरे को अपडेट भी नहीं कर सकता. मैं अपडेट नहीं कर सकता तो मैं स्टेटस अपडेट नहीं कर पाऊंगा कि मेरा आधार आई एम नॉट एबल टू डू इट, या आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू लिंक द आधार. Now that remains a controversy, and that might be a problem area for some people. Anyway, sir, moving forward, another
circular number 4 2023 issued on the 5th of April, a very important circular. This has connection with the tax deduction of at source for the employers beginning the month of April 2023. Now, sir, we know in the Finance Act, the new regime of tax, the new tax scheme under section 115 BAC has been made the default scheme, the default regime for all the assessees. Meaning thereby, sir, with the beginning of this financial year, everybody, every individual is by default in the new tax regime. That is the under section 115 BAC. Now, the problem for majority of the people will arise, or the option will arise when we will be filing the return of income in the month of June, July of 2024. But sir, for the employers, for the salary class, the problem is today that we need to decide, we need to take an option that in which regime we require, is more favorable to me. All the employers have been suggested to take declarations from the assessees, from the employees, to choose which option they want to go in. Now, as a matter of option, आज हमें अपने employer को तो बता देना है, and employer, of course, he has to take option A or option B as opted by the employee, and he has to deduct tax accordingly. Now, sir, this will not be a bindation for the employee, and he can ultimately, in case supposedly he is opting for the default scheme, which is the new section, the new regime, and ultimately while filing his return of income, he observes that the old regime was better, and he wants to file his taxes according to the old regime. Sir, he will have that option to change his tax regime. He will be paying this circular will not be bindation for anybody, and choosing and declaring it with the employer will be no bindation to the assessees. He will be absolutely free to take any option at that point in time. Now, sir, another question that arises out of here is that once, say for example, आज मुझे लगता है मैंने अपनी option select कर ली है, and employer को मैंने दे दी है. So क्या इसका ये मतलब है कि मैं अपनी 12 महीने के लिए employer के साथ bind हो गया? So the department is silent on that issue. I personally think that we will be able to change it also. Employee is eligible to file his declarations with the employee again and again every month, and as he progresses, अगर आज की डेट में उसने कोई deductions नहीं ली हुई हैं, और subsequently in the months of October or December or up till February, March also, if he is taking new deductions, he is wanting to avail new deductions, or if there is a addition to his income, he is absolutely free to file those options with the employer. And मेरे हिसाब से he may also be able to change his tax regime also with the employer, but it might affect his overall taxes. But that is always there, and the employers are required to reassess the TDS up till the month of March. That is the last month of the financial year. So, sir, ये तो थे दो circulars which were important that I thought I'll be discussing. Now, sir, there are some amendments by the Finance Act 2023 which have taken effect from 1st of April. थोड़ा सा वो discuss कर लेते हैं. Of course, the first one being the change of tax regime. It will be available. The new regime has become a default regime, and the rebate of basic under section 87A has been increased to 7 lakhs with effect from 2020-23, the current financial year. तो वो already effect में आ गया है. And going to the circular also जो आया था, I think it is good for the employees to, it might be beneficial to the employees to opt for the new tax regime. Calculations अगर हम करके देखें, तो the overall effect of the 80C deductions has been negated to a great effect under the amended new 115 BSE. So my advice to everybody is कि अपने assessees जो salary assessees हैं उनके साथ एक बार discuss हो जाए, और options can be worked out. There'll be a lot of fact finding here, and what I have observed is that it is going to be very effective.
Moving on, sir. इलेक्ट्रॉनिक एक अमेंडमेंट आई थी अभी फाइनेंस बिल में, which has been given effect to by the finance act. Conversion of gold into electronic gold. So from if we have a physical gold and we are wanting to change into an electronic gold receipt, we are allowed to do that, and there was an amendment that it will not be regarded as a capital gain transaction, and it will be basically not considered as a transfer. Then, sir, we have deemed gift. So, if a non-resident is receiving any amount more than 50,000 rupees in the financial year, accruing out of India, it will be deemed. It is included in Section 56, and it will be regarded as income. It will be taken as income. Then, sir, life insurance policies, Section 80C के अंदर एक amendment आई थी, which is कि if the premium exceeds rupees 5 lakhs after the 1st of April 2023, वो भी effect में आ गई है from the 1st of April 2023. The amendment has taken effect. Major amendment regarding Section 54, the deductions under Section 54, again with effect from 1st of April 2023, it has been given effect to. कोई भी capital gain arise होता है which more than 10 crore rupees. So the maximum deduction allowable to any assessee as an investment into a new property, either under Section 54 or 54F, will be a maximum amount of rupees 10 crores, and beyond that, any capital gain arising beyond that, the tax will have to be paid. There is no any further deduction available. पहले क्या होता था, कितनी भी हमारा capital gain आता था, अगर हम उसको reinvestment कर रहे हैं, so that was absolutely tax free. But this will, I think, be of major impact, and it is already in effect with the beginning of this current financial year. Then a small amendment was there. Interest on housing loans will not be treated as a cost of improvement. That's a complete. It has been taken away. पहले भी available नहीं थी, but because of the calculation, Section 24 में हम पहले ही deduction ले लेते थे, और cost of acquisition के अंदर काफी time बाद आती थी. But now it is taken away from the cost of improvement. Either or not, we have taken it in the Section 24. Then, sir, again, very major amendment was regarding TDS, or rather TCS, collectible on the tour packages and the payment outside India, under the LRS scheme. The rate of TCS has been increased from 5% to 20%. We were expecting कि finance bill के बाद finance act के अंदर थोड़े से शायद इसके अंदर relaxation आएगी, but it has not been. There is no relaxation here, and the rate of tax is 20%, which is, in my personal opinion, a very major TCS rate. And more importantly, जो बाहर जा रहे हैं, जो पैकेज लेके फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, 20% I think is a very high rate of cost for anybody. This might actually prove beneficial in terms of increasing our domestic tourism, because this TCS will be a deterrent for anybody to go out. Now, sir, again, very important amendment, but I think मैं इसको अभी तो थोड़ा सा ही लूँगा, सिर्फ introduction लूँगा, but I propose, मैं गौरव जी से भी request करूँगा that this particular section, Section 43B, should be taken up as a complete session in one of these seminars, because I think there's a very important amendment here, and it needs detailed deliberations. तो I think 2 घंटे का या 3 घंटे का एक session हमें इसके लिए चाहिए. गौरव जी, we can kindly note this. Taken note of this. So, so the amendment is, I'm just briefing the amendment. Sir, Section 43B के अंदर एक amendment आई थी कि MSMEs की जो payments हैं, that will be only allowed on the actual payments. So जो 3 महीने की timeline है, या as per MSME Act अगर contractual within the timeline हम payment कर देते हैं, so तभी मिलेगा, and it will be available on actual payment. I think this is a very problematic area for the current year of audit also. So with the जैसे कि हम discuss कर रहे हैं audit trail के ऊपर, तो उसके साथ साथ इसका भी एक session, it is a very detailed and important section, because इस साल के audit में भी ये point आना है.
Now, I think this is all I have on the updates. Then, sir, recent amendment yesterday, the Supreme Court has confirmed the judgment of the Delhi High Court in Touchstone case, confirming that the section assessment year 14-15 and 15-16 are with 13-14 and 14-15 are within the ambit of 148 and the notices are valid. I think, sir, this is again a very, very big controversy. I don't know. I have yet to read the order in detail. But I don't know how much badly this will affect the Allahabad High Court and Gujarat High Court cases, wherein the judgments have been passed in favor of the SSC. Now, when are they listed before the Supreme Court, and which bench it will be taken up? Because I am not very sure that the same Honorable Justice M.R. Shah, जिन्होंने ये judgment ली है, I think is due to retire very soon. So I don't know whether this Allahabad High Court judgment and Gujarat High Court judgment will go to the same bench or not, but it may have some effect there. Jaspalji, Personally speaking, sir, for the benefit of all, I have just shared the Touchstone holding income tax decision of Delhi High Court on 9th of September 2022. I am just wanting everyone to just read the operative paragraph. We are just going directly to the operative paragraph of the decision. This is paragraph number 16. The petitioner's challenge to para 6.2 of the CBDT instruction dated 11th May 2022 is not maintainable. The contention of the petitioner that the assessment for assessment year 13-14 became time barred on 31st March 2020 is incorrect. The time period for assessment stood extended till 30th June 2021. The initial reassessment notice for AY signature, this is for 13-14 has been issued to the petitioner within the set time of limitation. Supreme Court has declared that the said reassessment notice be deemed as a notice under 148A of the Act and permitted revenue to complete the said proceedings. In this case, the income alleged to have escaped assessment is more than 50 lakhs, and therefore the rigors of 149(1)(b) of the Act has been satisfied. So, sir, let me summarize the case. Correct. मैं एक बहुत simple way में इसको कर दूंगा. I will not be discussing the exact operative paragraph. Sir, Delhi High Court ने जब ये case orders pass किए थे, it has been silent on the real issue. And it has just, as the passing remarks, dismissed the petition, and they have not concluded the arguments made before the Honorable High Court. However, sir, Gujarat High Court and Allahabad High Court have, by way of speaking orders, quashed the reassessment notices of 13-14 and 14-15. Now, that is where I say that it has to be, the arguments have to be taken up, that what is being challenged before the Supreme Court, what was challenged before the Supreme Court, why this touchstone judgment, and what exactly the Supreme Court has said. Because what I read as a news yesterday was that Supreme Court has noted that they did not allow the notices to travel back in time and the defenses are still available. हालांकि इसको कहने के बाद भी the judgments have been, the touchstone judgment have been confirmed. So I think it is too premature for me to comment upon this judgment at the moment. I will be reading on it. But again, yes, थोड़ा सा benefit हमें ये मिल सकता है कि this is an SLP. It might not affect the other cases which may be listed. But yes, a judgment of the Honorable Supreme Court is definitely a very, very big issue. It is there forever, and it will have an impact on the following cases which will be listed or argued before the Honorable Supreme Court. But again, sir, personally speaking, it is a very, very difficult area, and we have a very good argument. The other judgments are very good in terms of the orders as passed, and the fact is that this 13-14 and 14-15 cannot be. The Ashish Agarwal judgment was also very, very clear. उसके बाद जो सर्कुलर आया था, डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया था, उन्होंने कवर अप कर लिया था, बट आशीष अग्रवाल itself says that 13-14 and 14-15 will not be covered, and they'll remain quashed. But
we'll have to analyze it. I think Saturday को अगर मौका मिला तो we can take 15-20 minutes on this issue also. I think for the income tax, that is all I have. And with this, I thank you all and I request Gauravji to please take over. Sure. Jaspalji, before we depart, any questions from any of the member on the Aadhaar linking part? Any questions on the PAN Aadhaar linking? That is one crucial topic which Jaspalji has spoken on today. Sir, I have a question. Sir, Yes, please. My son-in-law, this is a very personal question. My son-in-law is a NRI. He's been there for the last 10, 12 years. He doesn't have an Aadhaar, nor my daughter have. Now, there is an interest element, there's an interest income which he earns on his NRO deposit in India. What happens to that? Is he liable to file a return? Sir, Yeah. please complete. Yeah, and then recently he was here in India and he tried to get an Aadhaar. There was no way he could get an Aadhaar. Both Sir, of them couldn't get it. for Aadhaar, as I said, even the income tax section 139 says that if you are eligible to take Aadhaar as per Aadhaar Act, then you are then you have to file link it to your PAN in income tax. अगर हम आधार एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो वहां पे ये लिखा हुआ है any resident. Now resident is also defined in the Aadhaar Act. Mind you, sir, according to section 139 also, it says that the resident will have the same meaning as contained in the Aadhaar Act, not as contained in the income tax, not as per income tax. Now Aadhaar says a resident in India who is here for more than 182 days in the last year. Sir, अगर हम आधार की ओरिजिनलिटी पे जाएं, आधार was brought in to give subsidies. The scope has been widened enormously. Now, purely as per Aadhaar Act, your son-in-law या जो भी हैं, उनको अगर वो इंडिया में नहीं रहते हैं, they are not required to take Aadhaar. And as a consequence, they are not required to link their Aadhaar with PAN. Now the issue remains, sir, जो मैं बात कर रहा था, कि ये कैसे डिटरमिन होएगा कि उसके अंदर वो पैन इनऑपरेटिव नहीं हो. दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट. द क्वेश्चन रिमेन्स, क्या उनकी इंडिया की इनकम टैक्सेबल है कि नहीं. नाउ वेदर दे हैव टू फाइल देयर रिटर्न हियर इन इंडिया और नॉट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर. अगर उनकी टैक्सेबल इनकम इंडिया में नहीं है, देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवन फाइल देयर रिटर्न. हाँ, अगर उनका कोई टीडीएस कट रहा है और हमें वो रिफंड लेना है तो हम रिटर्न फाइल करेंगे. But again, when we are filing it as a non-resident, sir, we will not be required to link the Aadhaar. Absolutely, I'm very sure on that part. और वो problem नहीं है. The problem is जहाँ पे for some reason we are out of India, we are not able to take Aadhaar, and we are supposed to compulsorily file the return of income. वहाँ पे problem आएगी. But that is a very small group of people which might have to deal with that kind of problem. वो case to case basis पे and fact to fact basis पे देखना पड़ेगा. Thank you. Yeah, Jaspal ji. हाँ जी सर. Can I also a little continue in this particular question? मैं उसमें थोड़ा continuation में ही डाल रहा हूँ. If a non-resident already has a Aadhaar card which is not presently linked to PAN, but because he's having that Aadhaar, तो क्या does he need to link it with PAN? Sir, technically speaking, legally speaking, no. But अगर है तो क्यों नहीं करना. मेरे को लगता है इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा. Because ultimately we will have to deal with this situation someday or the other. अगर आधार हमारा इशू हुआ है, now on a pure legal basis or fact basis पे अगर मैं बात करूं, what the section defines, NRIs को who is not a resident in India, it is not required. Absolutely कोई दिक्कत नहीं आएगी. I have been filing returns जो नॉन रेजिडेंट्स की हैं, जिनके पास आधार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी रिक्वायरमेंट नहीं आई, कोई पेनल्टी नहीं आई. एंड आई डोंट नो अब इनऑपरेटिव होने के बाद व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस. अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, देन वी विल हैव टू स्ट्रगल विद इट टू गेट इट रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉन रेगुलराइज्ड बेसिकली. तो अगर किसी के पास आधार है
और वो टेम्परेरीली नॉन रेजिडेंट हो गया है एंड ही इज फॉलिंग अंडर दैट कंडीशन कि उसको कंपल्सरली नहीं लिंक करना है, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर कर दिया है हमने लिंक उसको और वो लिंक या आज कर दें तो देयर इज नो हार्म टू इट आल्सो। So that is why I say, you know, the practical problem comes is that persons who have their Aadhaar, वो उन्होंने तब एक टेलीफोन नंबर से किया था. Now because we are not residing here, that those telephone numbers are not operational now. Yeah. Those cards are not operational. So Yes, that is problem which is arising. sir, exactly this is the point that I was making कि अगर हमारे आधार में for some reason जिनके फोन नहीं है या फोन गलत है या नेम मिसमैच है and because of their absence from India they are not able to correct their आधार, ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को आएगी। बट इफ दे आर अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया for the last year only, they are not required, and if they are filing their returns as non-resident Indians, this problem will not arise. This is my take on this. Any other questions, sir? We can also have the questions at the end of the session. तो अगर किस मतलब इसके बाद भी किसी का क्वेश्चन आता है जब जीएसटी का पाठ हम शुरू कर रहे हैं तो we can take it up on the at the end of the session also. I think let us proceed with the GST part. I now request, so Jaspal ji will definitely be taking questions, whatever we will have in income tax later. So for the moment, Suresh ji, I request you to please start on the deliberation. GST में जो amnesty scheme आई है, सबसे पहले मैं आपसे registration से शुरू करने के लिए request करूंगा कि registration के अंदर जिनके cancel हो गए थे उनको क्या रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है, क्या उसके अंदर जो आगे टाइमलाइंस है, सो 31 दिसंबर 2022 वहां तक की तो एक टाइमलाइन है ही है, उसके आगे जो हमारे कैंसिलेशंस हुए हैं उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करेगी गवर्नमेंट, दोनों एस्पेक्ट्स अगर आप एक बार ले लें, और उसके अलावा जो आपको बाकी एमनेस्टी स्कीम के बारे में हमें अपडेट करना है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक अप द सेशन सर। थैंक यू सुरेश। थैंक यू गौरव जी। गुड इवनिंग ऑल द मेंबर्स। अभी सीबीआईसी ने 31 मार्च को 8 नोटिफिकेशन दिए, नोटिफिकेशन नंबर 2 से लेकर नोटिफिकेशन नंबर 9 तक। गौरव जी ने कहा पहले हम शुरू करें रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये नोटिफिकेशन नंबर 3 में इसकी कवरेज है। नोटिफिकेशन 3 हमें ये कहता है कि अगर किसी भी रजिस्टर्ड डीलर का आरसी कैंसिल हो गया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020 for the reason being he is a continued defaulter in filing returns, अगर इस वजह से उसका आरसी कैंसिल हो गया और वो अपनी रेवोकेशन नहीं डाल सका विद इन द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट ग्रांटेड टू हिम, और तो इस केस में इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बोला गया कि अब वो अपनी रेवोकेशन डाल सकता है फॉर रेवोकेशन ऑफ आरसी कैंसिलेशन के एप्लीकेशन के लिए रेवोकेशन एप्लीकेशन लगा सकता है, और ये एप्लीकेशन उसको 30 जून 2023 से पहले लगानी पड़ेगी। अगर वो ऐसा करते हैं 30 जून 23 से पहले अप्लाई करते हैं रेवोकेशन के लिए, तो उनको अपनी सारी रिटर्न फर्निश करनी होगी जिसके लिए वो डिफॉल्ट किया था उन्होंने, वो रिटर्न अलोंग विद टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फीस जमा करा के ही अपनी रेवोकेशन के लिए आ सकते हैं। यह भी बताया गया इसी नोटिफिकेशन में, अगर किसी वजह से उन्होंने अपील में गए थे तो वो जो अपील में गए हुए केसेस भी हैं उनको भी अपील का वेट करे बगैर हम रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी का केस डिसाइडेड भी हो चुका है अपीलेट अथॉरिटी से ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइम लिमिट स्पेसिफिकेशंस, तो उसको भी हम रेवोकेशन के लिए 30 जून 23 तक अपने जीएसटी पोर्टल पर डाल करके रेवोकेशन करा सकते हैं। ऐसा बताया गया नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 31/3/2023। अब मैं बात करूंगा नोटिफिकेशन नंबर 2 की। नोटिफिकेशन नंबर 2 में बताया गया कि कंपोजिशन डीलर, अगर किसी भी कंपोजिशन डीलर ने सिंस बिगिनिंग यानी कि जुलाई 17 जब से भी हमारा जीएसटी एक्ट आया था कोई रिटर्न डिफॉल्टर है, तो उसके लिए भी एक अमनेस्टी स्कीम आई है। चूंकि 17-18 और 18-19 में कंपोजिशन डीलर वर लाइबल टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स, तो उनकी क्वार्टरली रिटर्न के लिए अमनेस्टी खुल गई है, और बाद में इस क्वार्टरली रिटर्न्स को एनुअल रिटर्न कर दिया गया था फ्रॉम द ईयर 1920। तो 19-20 या 20-21 या 21-22 की अगर किसी की ईयरली रिटर्न्स जीएसटीआर 4 पेंडिंग है तो अब जा सकती है,
जिसके लिए कंडीशन ये बताई गई है कि जो भी रिटर्न डिफॉल्ट की गई है उसके लिए अब 250 रुपए SGST, 250 रुपए CGST दे करके अपनी रिटर्न को रेगुलराइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे फर्निश GSTR 4 अप टू 30 जून 2023। अगर किसी कारणवश उसकी कंपोजिशन रिटर्न के अंदर टैक्स लायबिलिटी ही नील है तो लेट फीस भी नील ही मानी जाएगी उस पर्टिकुलर रिटर्न के लिए जिसमें टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही। यह था नोटिफिकेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4, 31 मार्च 2023। इसके अंदर यह बताया गया कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोसीजर्स में कुछ चेंजेस आई हैं। चेंजेस में यह बताया गया है कि अब एक रूल 8 विद इन ब्रैकेट 4A इसमें सब्स्टिट्यूट किया गया और इसका इंपैक्ट यह होगा कि कोई भी रजिस्ट्रेशन वो तभी रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा जबकि वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका होगा, और इसके साथ साथ वो फोटोग्राफ को भी, जो एप्लीकेंट है उसके फोटोग्राफ को भी वेरीफाई करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द REG 01 उसकी भी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी बाय द ऑफिसर्स। इन सब चीजों के करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन उसको जब ग्रांट होगा वही वैलिड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और यह भी बताया दिया गया कि इसके अंदर आधार ऑथेंटिकेशन की जो डेट होगी वो, या डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट B ऑफ REG 1 जो भी जल्दी होगी उसके दिन से ही उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की। साथ ही साथ ये भी बताया गया नोटिफिकेशन नंबर 5 में कि जो हमने बात करी है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की, अभी ये एंटायर इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, इसको अभी ये फेस मैनर में करेंगे। इन द बिगिनिंग अभी उन्होंने सिर्फ स्टेट ऑफ गुजरात में शूट किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अमेंडमेंट हुई है नोटिफिकेशन नंबर 4 में या 5 में जो बात कर रहा हूं, इसका इन्होंने प्रोसीजर तो बता दिया, लेकिन अभी सिर्फ गुजरात में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की बात की गई है। बाकी स्टेट में जब भी करेंगे इसको अलग से नोटिफाई करेंगे। जब तक नोटिफाई नहीं होता तब तक एज यूजुअल चलेगा जैसे अभी चल रहा था। अब मैं चलता हूं नोटिफिकेशन नंबर 6 की तरफ। नोटिफिकेशन नंबर 6 31 मार्च 2023 ये बात करता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी डीलर ने, रेगुलर डीलर ने अपनी रिटर्न नहीं भरी और उसकी रिटर्न नहीं आई तो ऑफिसर्स के पास ये पावर है कि वो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 में कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाती है तो वहां पर एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर अगर वो रिटर्न फाइल हो जाती है तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को विड्रॉल माना जाता है। इस नोटिफिकेशन नंबर 6/2023 31/3/2023 से ये बताया गया कि अगर कोई भी ऐसी असेसमेंट जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 की गई है और वो 28 फरवरी 2023 से पहले हो गई है तो उसको अगर डीलर अपनी रिटर्न को डाल देता है 30 जून 23 तक तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को विड्रॉ माना जाएगा। ये एक तरह की अमनेस्टी दी गई है कि जितनी भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पहले हो चुकी हैं, अगर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने के बावजूद भी टाइम लिमिट पर आपने उसको रिटर्न नहीं भी डाली, बावजूद उसके अगर आप उसको 30 जून 2023 तक भी डाल देते हैं तो उसके लिए इसको विड्रॉल माना जाएगा जो ऑलरेडी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो चुकी है। ये ऐसा नोटिफिकेशन नंबर 6 में बताया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 7, नोटिफिकेशन नंबर 7 के अंदर यह बोला गया कि अगर किसी रजिस्टर्ड डीलर की एनुअल रिटर्न भरने से रह गई, मे बी आइदर फॉर द ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 या 21-22, उसके लिए भी एक एमनेस्टी स्कीम आ गई है जिसके किसी भी कारण से अगर GSTR 9 एनुअल रिटर्न भरने से रह गई, वो अब अपनी GSTR 9 एनुअल रिटर्न को भर सकता है सब्जेक्ट टू लेट फीस ऑफ ₹10,000 अंडर CGST एंड 10,000 अंडर SGST एक्ट, जो कि पहले ये ₹100 पर डे प्लस 0.05% टर्नओवर के बेस पर थी, वो काफी हो जाती थी। उसको ध्यान में रखते हुए अब इन्होंने पिछले किसी भी साल के लिए
17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के और 21, 22 के लिए अपनी कैपिंग कर दी है 10,000 अंडर CGST एंड 10,000 अंडर SGST ऐड करके फॉर्म 9 फाइल किया जा सकता है। 22-23 के लिए भी इन्होंने एक रैशनलाइजेशन फीस को करा है, लेट फीस की रैशनलाइजेशन की है और उसमें यह बोला गया कि अगर 22-23 के लिए जो लेट फीस के प्रोविजन रहेंगे वो बताए गए हैं इस नोटिफिकेशन नंबर 7 में। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, अगर किसी पर्सन की, रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उस आदमी को, उस ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को 25 रुपए पर डे की लेट फीस लगेगी, सब्जेक्ट टू 0.02% of the turnover in the state or union territory। अगर उस रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है और अप टू 20 करोड़ है तो लेट फीस would be ₹50 per day, subject to maximum capping of 0.02% of the turnover। और अगर मान लो किसी की टर्नओवर एक्सीडिंग 20 करोड़ है तो उस पर जो एग्जिस्टिंग लॉ है वही अप्लाई होगा, ₹100 पर डे, सब्जेक्ट टू कैपिंग ऑफ 0.05% ऑफ द टर्नओवर। अब हम आगे चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8। नोटिफिकेशन नंबर 8 में बात की गई है फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न बेसिकली वो रिटर्न होती है जो आरसी कैंसिलेशन के बाद मैंडेटरी होती है रजिस्टर्ड डीलर को भरने के लिए। और ये जो फाइनल रिटर्न होती है बेसिकली इट कंसिस्ट अ डिटेल ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आरसी। ये रिटर्न नॉर्मली बहुत सारे सप्लायर्स को, बहुत सारे डीलर्स को नहीं पता होता, जिसकी वजह से ये रिटर्न एक हट रह जाती है और रजिस्टर्ड पर्सन जिसका आरसी कैंसिल हो चुका वो उसको रिटर्न फाइल करने में गलती कर देता है, तो चूक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी फाइनल रिटर्न इन GSTR 10 अभी भी पेंडिंग चल रही है। गवर्नमेंट ने इस बात को देखते हुए नोटिफिकेशन नंबर 8 इशू किया और ये बोला कि अगर किसी का कोई भी GSTR 10 रह गया है तो वो अपनी GSTR 10 को अब फाइल कर सकता है। इफ ही फाइल्स GSTR 10 बिटवीन 1 अप्रैल 23 टू 30 जून 23 तो उसको जो लेट फीस लगेगी वो 500 रुपए CGST और 500 रुपए SGST एक्ट में देनी है। पहले ये 10-10 हजार रुपए CGST और 10-10 हजार रुपए SGST में लगता था नॉर्मल प्रोविजन के अनुसार। ये एक एमनेस्टी दी गई है कि जो भी रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न रह गई है, फाइनल रिटर्न GSTR 10 की रह गई है, वो फाइल कर सकते हैं अप टू 30 जून 2023। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आगे हम नोटिफिकेशन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 के अंदर इन्होंने जो ऑर्डर इशू करने थे डिपार्टमेंट ने सेक्शन 73 के, उसकी डेट को कुछ बढ़ा दिया है। अब डेट की जो एक्सटेंडेड डेट होगी वो इस तरीके से बताई गई है नोटिफिकेशन नंबर 9 के अंदर कि ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 टू बी पास्ड बिफोर 31 दिसंबर 2023 फॉर द ईयर 17-18। तो 17-18 का जो कुछ टाइम बार अभी हो रहा था, मेरे ख्याल 30 सितंबर को हो रहा था, इसको अब इन्होंने 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया और उससे 3 महीने पहले नोटिस देना होता है प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए 30/9/2023 की डेट है। कहने का मतलब अगर 17-18 की सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग चल रही है तो उसका नोटिस डिपार्टमेंट 30/9/2023 तक दे सकता है और ऑर्डर की कंक्लूडिंग उसको 31/12/2023 तक करनी होगी टाइम बाउंड मैनर में। और यही प्रोसीडिंग 73 की अगर 18-19 के लिए है तो उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है अप टू 31 मार्च 2024। और उसके लिए भी शो कॉज नोटिस अगर देना है डिपार्टमेंट को तो 31/12/2023, जो कि 3 महीने पहले देना होता है, 31/12/2023 तक दे सकता है। इसी तरीके से इन्होंने ये भी बताया कि अगर 73 की प्रोसीडिंग 19-20 के लिए इनिशिएट करनी है तो उसकी लास्ट डेट, एक्सटेंडेड डेट वुड बी 30 जून 2024, जिसके लिए SCN कैन बी गिवन अप टू 31 मार्च 2024। ये जो भी मैंने अभी बात करी ये 73 की प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, बट कोई भी एक्सटेंशन अभी 74 की प्रोसीडिंग के लिए इस नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं है। ये मैंने अभी आपको अपडेट किया। नोटिफिकेशन नंबर 2 से लेकर नोटिफिकेशन नंबर 8 31 मार्च 2023 को आए, जिसमें कुछ अमनेस्टी दिखाई दी। amnesty in relation to composition dealer for non filing of return
amnesty related to revocation for cancellation of RCT applications, some procedural changes in registration, और एनुअल रिटर्न के ना भरने के ऊपर फॉर्म 9 की कुछ फॉर्म 9 के लिए कुछ इन्होंने एमनेस्टी दी, फॉर्म जीएसटी 10 की एमनेस्टी दी और 73 की प्रोसीडिंग का टाइम बढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट नोटिफिकेशन issued on 31st March 2023 from 2 to 9. And now over to Gaurav ji for further proceeding. Gaurav ji, hello. जब तक गौरव जी आते हैं तब तक गौरव जी am I आते हैं। audible? हाँ, जब तक गौरव जी आते हैं, ये नोटिफिकेशन जैसे मैंने अभी जिक्र की है 2 से लेकर 9 तक, अगर इस पर कोई पॉइंट है तो हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी मेंबर के पास कोई भी पॉइंट हो नोटिफिकेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, तो वो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एमनेस्टी स्कीम्स जो अभी आई हैं उसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेट अस फर्स्ट टेक अप दैट बिफोर वी प्रोसीड। नहीं तो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सर, एनी क्वेश्चन? समझ नहीं आया या सबको आता है? एक सवाल जो सुरेश जी कल डिस्कस हो रहा था, जी जी जो सामने आया कि भाई अगर फॉर्म 9 हमने फाइल कर दिया, 9C नहीं फाइल करा, जी तो उस सज्जन को क्या इस एमनेस्टी का बेनिफिट मिलेगा? क्वेश्चन मैं आप सबसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी ने फॉर्म 9 फिल कर दिया था पास्ट में और फॉर्म 9C नहीं फिल करा, तो क्या उसको इस स्टेज पे कुछ करना चाहिए? जहां तक मैं अपना विचार बोलता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ये इसने कहीं भी 9C का कोई जिक्र नहीं किया। क्योंकि जिक्र नहीं किया तो 9C की जो भी इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग इस एमनेस्टी से पहले चल रही थी वही चलनी चाहिए। उस हिसाब से मैं देखूं तो 9C की कोई पेनल्टी प्रोविजन लेट फीस का नहीं है, जहां तक मैं पढ़ पाया हूं। और चूंकि नहीं है तो जो जनरल पेनल्टी का क्लॉज था 25-25 हजार रुपए की, क्योंकि जो कोई कहीं पर प्रेस्क्राइब नहीं है तो पेनल्टी लग सकती है 25 हजार रुपए फॉर डिफॉल्ट, वो मेरे हिसाब से 9C ना फाइल करने की 50 हजार की पेनल्टी आज भी लग सकती है। अगर मैं इस एमनेस्टी को अवेल कर देता हूं और अपनी पेनल्टी 10-10 हजार रुपए दे के 9 भर देता हूं, तो मेरे ख्याल मेरा केस अगर 5 करोड़ से ज्यादा का है, 9C भरते वक्त मुझे 25-25 हजार की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, ऐसा मेरा व्यू है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं इसमें सिर्फ एक बारी I'll just read out the rule which says that every registered person other than those referred in the proviso to section 35 subsection 5 whose aggregate turnover during the financial year exceeds 2 crore shall get his account audited and he shall furnish a copy of audited annual accounts and reconciliation statement duly certified in form GSTR 9C electronically through common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. Now, my dear friends, इसके अंदर the only point which I am trying to make is annual return का जो rule है, rule 80, उसी के अंदर हमारे पास ये audit की जो 9C की requirement है वो भी वहीं पर ही है। ठीक है। तो मेरा प्रोसीजर दोनों को इंक्लूड करके बनता है। In my humble opinion, 9C is nothing but a extension or I can say a add-on to the annual return which is filed in form GSTR 9. So अगर किसी का 9C किसी ने नहीं फाइल किया है, मेरे हिसाब से he should file it in the current period. As सुरेश जी says कि उसकी अलग से कोई पेनल्टी नहीं है, लेट फीस नहीं है। तो हमारे पे जो जनरल पेनल्टी है मैक्सिमम वो लग सकती है। बट अगर इस एमनेस्टी में कोई व्यक्ति उसको फाइल करता है, मेरे हिसाब से that is being regularization of the form 9 and therefore that particular penalty can also be contested if the same is imposed by any of the officer. तो थोड़ा सा इस एमनेस्टी को ब्रॉडली देखा जाए। एक क्वेश्चन जो और बहुत मेंबर्स का आया है वो ये आया है सुरेश जी की मेरी रजिस्ट्रेशन सपोज कैंसिल हो गई थी 2020 में जी, आज मैं उसको लाइव कर सकता हूँ बाय फाइलिंग और रेवोकेशन। करेक्ट?
अब अगर मैं उस रेवोकेशन को फाइल करता हूं तो उसके बाद जो मैं पिछले 2 साल के रिटर्न्स भरूंगा, 3 साल की रादर, जी। उसकी जो मेरे पास रिटर्न्स जब मैं फाइल करूंगा तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो एक लिमिटेशन है वो प्रिस्क्राइब करिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में। राइट। तो रिटर्न्स जब मैंने लेट फाइल कर रहा हूं आज की डेट में, इवन दो माय रजिस्ट्रेशन विल बी रेगुलराइज्ड आफ्टर द फाइलिंग के वक्त हमें 3B मना नहीं करता। 3B में कोई ब्लॉकिंग नहीं है, आज आप फाइल करेंगे, आईटीसी लेंगे, वो आपको फाइल करने देगा। बट आफ्टर 2 months, 3 months or maybe 1 year, the officer will send you a notice. What will be the notice say? That you have availed the input tax credit after the date which was the maximum date of availing the credit, which was September earlier, now increased to November, and therefore why this ITC is not ineligible and why it should not be recovered from you. तो आपने एक रेगुलराइज करने की एमनेस्टी स्कीम में सारी चीजें रेगुलराइज करी, रिटर्न्स फाइल करी, उसके बाद इस आईटीसी के भी झगड़े के अंदर आप फंसे। नाउ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय द मेंबर्स, इज इट वैलिड टू टेक द आईटीसी इन दीज रिटर्न्स इफ वी रेगुलराइज एवरीथिंग? दैट इज द क्वेश्चन। सो सुरेश जी, योर व्यूज। एंड मेरा व्यू इस पे ये आता है कि ये एमनेस्टी जो दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 3 के अंदर, इट अलाउज regularization of returns. It does not speak about ITC claim. ITC claim के लिए हमें सेक्शन 16(4) ही देखना पड़ेगा। अगर मेरे को 18-19 या 19-20 या 20-21 जो 16(4) में मैं टाइम बार हो चुका हूं, वो ITC का क्लेम मुझे रिटर्न पर नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा व्यू है, क्योंकि ये इस तरह की एमनेस्टी स्कीम आज से पहले भी आई थी, कोविड के टाइम पे भी आई थी। जब कोविड के टाइम पर भी ये डेट एक्सटेंड की गई थी पुराने सालों की, वहां पर भी ये हमें आईटीसी का क्रेडिट नहीं दिया गया था। कोविड के टाइम पर भी हमारे को एक्सटेंशन मिली थी फ्रॉम लेट फीस। आज भी हमें उस चीज को लेट फीस का वेवर भी नहीं है। यहाँ तो वेवर है कि रेगुलराइज ऑफ रजिस्ट्रेशन का, लेट फीस तो देनी ही है। इसमें भी लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि विल हैव टू पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फीस। सिर्फ रेवोकेशन उन्होंने अलाउ करा है। रेवोकेशन इसलिए अलाउ किया कि वो जो 90 डेज का टाइम था, लोगों को पता नहीं था, पोर्टल नहीं चल रहा था या कर नहीं पाए थे, आरसी कैंसिल हो गए और हमें आरसी कैंसिलेशन का पता ही नहीं लगा। हमें कैंसिलेशन का पता ही 10 महीने बाद पता लगा, 6 महीने बाद पता लगा। तो देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से हम अपना रिवोकेशन टाइम पर नहीं डाल पाए थे। तो मेरे हिसाब से एमनेस्टी गिव्स अस एमनेस्टी ओनली फॉर रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट डज नॉट गिव एंटाइटल टू अस फॉर आईटीसी क्लेम्स। मेरी सोच ये कहती है। सर, मैं 2 चीजें हाईलाइट करूंगा उसके लिए। सबसे पहला, जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन सेक्शन 148 के अंदर आया है, जो कहता है द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड सेफगार्ड notify certain classes of registered person and special procedures to be followed by such persons, including those with regard to registration for furnishing of return, payment of tax and administration of such particular person. So meaning thereby आपकी जो रिटर्न प्रिस्क्राइब करी गई है वो प्रोसीजर 148 के तहत इस नोटिफिकेशन ने प्रिस्क्राइब किया। राइट सर? राइट। Now it is not a waiver, it is basically a prescription. Right. When you are prescribing something today, how can a date which has been lapsed in the past? So you have categorized a special category of people, उनको आपने अलग किया और उन particular set of लोगों को आपने कहा कि भाई आप अपनी जो returns है, आप अपनी जो compliances हैं वो इस तरीके से पूरा करिए। Now when you have allowed them to do it in a particular manner, now what does this notification says? इन्होंने कहा, पहले तो इन्होंने वो class of people अलग करके बताए। उन्होंने कहा hereby we notify that registered person whose registration has been cancelled under B or C of 29(2) on or before 31st December 2022 and who has failed to apply for revocation. So ये तो सबसे पहला काम हुआ, defining the class of people. Right. Second, as the class of person who shall follow the following special procedure. So meaning thereby this return is not being filed under 39. This is being filed under 148. Now comes the question, what is the special procedure? Sorry.
The registered person may apply for the revocation, number one. Number two, application of revocation shall be filed only after furnishing the return due up to the effective date of cancellation and after the payment of the due taxes in terms of such return, along with any interest payable or thereon. Now, please understand and appreciate जो इसके अंदर problem आएगी सबको. इन्होंने कहा only after furnishing the return due up to the effective date of cancellation. सुरेश जी, effective date कई बारी ऑफिसर्स बैक डेट कर देते हैं. जी वो इफेक्टिव डेट करंट वो डेट ऑफ कैंसिलेशन है, बट इफेक्टिव डेट वो ले जाते हैं 1 जुलाई. राइट. तो जिसकी 1 जुलाई चली गई उसको तो कोई भी रिटर्न नहीं फाइल करनी है अगर मैं इस नोटिफिकेशन के अंदर देखूं. सेकंड, हाँ जी आप बोलो आप बोलो सेकंड बोलो. सेकंड, सपोज अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था जून 2021 में या फॉर दैट मैटर जून 2022 में, अगर मैं इसको प्लेन वेनिला लैंग्वेज में भी पढ़ूं विदाउट गोइंग इनटू द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, मेरे को जून 22 तक की रिटर्न में तो इसने रिलीफ दे दिया अंडर 148, मेरा रिवोक हो जाएगा जब मैं 22 तक की रिटर्न जून 22 तक की भरूंगा. बट उसके बाद का इसके अंदर कोई भी रिलीफ नहीं जी. तो जून 22 तक तो जो मैंने बोला वो लड़ाई ऑन है कि सर ये 148 के अंदर है इसलिए मेरा आईटीसी डिसअलाउ नहीं होगा. बट व्हाट अबाउट द पीरियड जो जुलाई के बाद है उसको ये प्रोटेक्शन नहीं मिली. सो ये भी सब मेंबर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये लड़ाई जो है किसी भी हम एसएससी की जो रिटर्न्स फाइल करा रहे हैं उसके अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल दैट पर्टिकुलर एसएससी दैट इवन दो एवरीथिंग विल बी रिवोक्ड, everything will become normalized, you may be required to pay certain late fees, but please also remember that you might have to face the consequences of disallowance of input tax credit. Your thoughts, Suresh? Yours. नहीं देखिए मेरा मानना ये है कि जैसे इन्होंने बात करी है लेट फीस की, अगर मैं पहले बात करूं तो उन्होंने कहा अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन. मान लीजिए आपकी 20 की कैंसिलेशन है तो लेट फीस तो ये 20 तक भी मांग रहे हैं और देर आफ्टर भी. अगर मेरे को आज ही रिवोक होता है तो लेट फीस का तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना आपका ना मेरा, क्योंकि लेट फीस तो इन्होंने लिख ही दिया कि आपको देनी पड़ेगी इवन व्हाइल वी आर गोइंग फॉर रेवोकेशन. करेक्ट. ठीक है. अब पॉइंट है आईटीसी का. करेक्ट. इन्होंने कहा आप रिटर्न भरिए. रिटर्न भरने में इन्होंने ये नहीं कहा कि आईटीसी ले लीजिए या आउटपुट दे दीजिए. वो तो कैलकुलेट करना है, मैटर ऑफ कैलकुलेशन है, प्रोसीजर है कि हमें अपना कैसे कैलकुलेट करना है. आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करना है वो आउटपुट का सेक्शन बताएगा, इनपुट का सेक्शन बताएगा इनपुट कैसे कैलकुलेट करना है. अगर मुझे सेक्शन 16(4) लेने का हक ही नहीं देता तो ये एमनेस्टी रेवोकेशन को खोलने के लिए दी गई है कि आपको जो 3 महीने का टाइम पीरियड में आप अप्लाई नहीं कर सके थे और हम आपके कैंसिलेशन आपका रिवोक नहीं हो सका था वो एमनेस्टी दे रहे हैं. मेरे हिसाब से आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा. एज ए मैटर ऑफ लिटिगेशन में जाने के लिए आपको पॉइंट बिल्कुल सॉलिड है कि आप कह सकते हैं अपनी बात को, पर शायद डिपार्टमेंट की ना तो ऐसी कोई मंशा है, अगर होती तो वो इस चीज को भी कवर कर सकते थे. आई एम विद यू ऑन दैट. डिपार्टमेंट की Yes. मतलब आई थिंक जो आपने बात कही वो मंशा तो नहीं मैं कहूंगा, बट हाँ इससे बड़ा क्लियर है कि वो चैलेंज जरूर आएगा. जी. मैं सब मेंबर से कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो कि उन्हें फेस भी करनी पड़ेगी. अब सपोज एक ट्रेडर था, अब ट्रेडर के केस में क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा मार्जिन होता है 5%, बाकी उसका सारा आईटीसी होता है, उसको सिर्फ 5-6% का जो मार्जिन है उस पर टैक्स पे करना होता है. तो इन सब केसेस के अंदर अगर हम आउटराइटली आउटपुट पे टैक्स दिलवा देंगे, इट विल नॉट बी फीसिबल फॉर सच पर्टिकुलर पर्सन टू फाइल द रिटर्न. सो इन दोस पर्टिकुलर केसेस आप रेगुलराइज तो करवाइए जी. और आपको ये चैलेंज लेना पड़ेगा. किसी चीज से आंख मूंद के बैठना सॉल्यूशन नहीं. बिल्कुल ठीक. That is one very humble statement which I'm saying. Government has given you benefit. Do take that benefit. Yes. And other battles will be taken on later. Part and parcel of practice. Now, Renu ji, you have raised your hand. आपको कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी स्पीकर से अभी? नहीं गौरव जी, जो आपने पूछा था वही मेरा क्वेश्चन था, 9C का और आईटीसी का ही, तो कवर अप हो गया. थैंक यू. ठीक है जी. सर सीताराम सर, प्लीज सर. Sir, you are on mute. Yes, sir. Now it's done. My question is, 1 and 3B has been regularly filed. Correct. Relevant ITC has been taken as per 16(4), 16(2), whatever section, applicable sections. Only error is non-filing of 9 and 9C.
In Hmm. that case, how is ITC? I am only regularizing by using the amnesty scheme. So जो return नहीं file किया था, that I am regularizing. How is it affecting the ITC? Sorry, I could not follow your question, Suresh ji. मैं Can नहीं, मेरा ख्याल तो यही कह रहे हैं कि मैं रेगुलर GSTR 1 और 3 भी डालता रहा हूँ, और अगर हाँ। 3-1 और GSTR 1 डालते रहे और उसमें ITC ले लिया, इन्होंने सिर्फ डिफॉल्ट किया 9 और 9C का, तो 9 और 9C के लिए तो amnesty आई गई है, तो ITC का तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, क्योंकि वो तो I have already claimed in my GSTR 1 and 3 भी, in 3B I have already claimed in my regular returns. सीताराम जी, अगर मैं सही समझ पाया हूँ कि Perfect. 3B के अंदर आपने ITC लिया हुआ है, बिल्कुल सर। तो वो तो आपका क्लेम है ही। 9-9C का डिफॉल्ट अगर आपका रह गया किसी वजह से, तो उसके लिए एमनेस्टी आ गई है। तो नहीं, आईटीसी का जो मुद्दा आ रहा है, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड वो कैसे कॉरिलेट हो रहा है। नहीं सर, जो गौरव जी का पॉइंट था वो ये पॉइंट था, क्योंकि अब मेरे को रिटर्न डालने की परमिशन आ गई है। आफ्टर रेवोकेशन आई कैन फर्निश द रिटर्न्स ऑफ द अर्लियर ईयर्स, जो मेरे कैंसिलेशन की वजह से मैं नहीं डाल पाया था। तो अगर वो 16/4 में टाइम बार हो गया, तो क्या मेरी ये रेगुलर ओरिजिनल रिटर्न मानते हुए मैं कैन क्लेम इट? ये पॉइंट था गौरव जी का, जिस पर हमारा डिफरेंट व्यू आया था आईटीसी क्लेम के ऊपर, कि इस एमनेस्टी में आईटीसी के क्लेम का अधिकार नहीं दिया गया है, ऐसा मैं बोल रहा था। और गौरव जी ने उसको रूल के थ्रू बताया था कि इसके अंदर क्या संभावना है। अंडरस्टूड, या थैंक यू, Right, sir. थैंक यू। Apart from the topics which have been discussed, Vijendra ji, can you please unmute yourself, sir? Sir, your question. मेरा क्वेश्चन है कि ये नोटिफिकेशन नंबर 9 जिसमें सेक्शन दिया हुआ है 73(9), क्या ये फाइनल असेसमेंट है या फिर इसकी टाइम बार लिमिट कुछ और होगी? जैसे पेड में हुआ करती थी फाइनल असेसमेंट 4 साल का पीरियड, क्या वही पीरियड है ये? सर, आप अगर 73 के अंदर देखेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो नॉर्मल जो 73 के अंदर अलाउड है, दैट इज 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। 17-18 का जो 3 साल का पीरियड था वो खत्म हो जाता है फरवरी 2023 में। गवर्नमेंट ने रिवोकिंग इट्स पावर, वेरी स्पेशल पावर्स अंडर 168A। मैं 1 मिनट के लिए सबके साथ 168A शेयर कर देता हूं। पहले उन्होंने इस टाइमलाइन को अपने ऑफिसर्स के लिए बढ़ाया है ताकि वो अपनी असेसमेंट्स पूरी कर सके, और उसको बढ़ाकर दिसंबर कर दिया। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। Notwithstanding anything contained in the Act, the government may, on the recommendation of the Council by notification, extend the time limit specified in or prescribed or notified under this Act in respect of action which cannot be completed or complied due to force majeure. Meaning thereby, when there is an impossibility and they could not complete that, then only they can extend that time limit. Now, what does the notification says? In exercise of the power conferred under 168A, read with section so and so of the IGST and the UT Act, the government on recommendation of the council hereby extend the time limit specified under subsection 73(10) and 73(9) for recovery of tax not paid or short paid or of the input tax credit availed relating to the period as specified below. Now the problem with this notification is, ये नोटिफिकेशन तभी इशू हो सकता था 168A में जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस फोर्स मेजोरे के वो आ रहे थे कोविड के दिनों। तो कोविड के दिनों में आपने कई नोटिफिकेशन निकाले सरकार ने, हमने उन्हें माना। वो नोटिफिकेशन मेरी अपील के भी थे, वो नोटिफिकेशन मेरी रिटर्न के भी थे, वो नोटिफिकेशन मेरे नॉर्मल कोर्स के भी थे। आज की डेट में जो एडजुडिकेशन सितंबर की डेट उन्होंने पहले अनाउंस करी थी, उसको बढ़ाकर दिसंबर कर। तो इसका मतलब वो आज तक ये बात कह रहे हैं कि भाई ये तो आफ्टर मैथ, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आई थी जो इम्पॉसिबल थी हैंडल करनी, इसके कारण हम अपना टाइम फ्रेम बढ़ा रहे हैं। तो इसके 2 इम्प्लीकेशन मेरे सामने आएंगे। नंबर 1, ये नोटिफिकेशन फोर्स मेजोरे के ऊपर साइलेंट, इसलिए मेरे हिसाब से ये नोटिफिकेशन चैलेंजेबल। आपको
पावर जो दी गई है वो केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो आपको बताने हैं कि क्या है। नंबर 2, अगर वो फोर्स मेजर आपके कोविड के रीजन है तो फिर वो एक तरफा नहीं हो सकता, वो दोनों तरफा होने चाहिए। फिर जो रिलीफ अगर असेसमेंट में आप ले रहे हैं तो सिमिलर कंप्लायंसेस में आप अपने ऑफिसर में कह रहे हैं कि उनकी तो असेसमेंट पूरी नहीं हो पाई है, एडजुडिकेशन पूरी नहीं हो पाई है। असेसी का तो बहुत सारा पीरियड ऐसा था जो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट लिमिटेशन जो बढ़ाया गया उसके बाद भी वो काफी सारे डिफॉल्ट्स पे बैठा है, जिसमें एक सुरेश जी ने बहुत मेजर पॉइंट बोला कि आईटीसी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिली। सो आई थिंक जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम टाइम लिमिट पे आ रही है वो इस नोटिफिकेशन को एज अ रीजन डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कोर्ट के सामने, एपेलेट अथॉरिटी के सामने, कि देखिए साहब, जब गवर्नमेंट ही कह रही है कि ये इम्पॉसिबल सिचुएशन थी और उन्होंने अपना टाइम लिमिट बढ़ाया, तो पैरेलली एसएससी ने जो काम डिले करा था वो उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। सेकंड, जो ये टाइम लिमिट सर बढ़ाई गई है, अगर मैं नॉर्मल पार्लेंस में देखूं, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, बट अगर आप नोटिफिकेशन को ही चैलेंज कर दे कि जी आपने रीजन नहीं दिया, क्या कोविड का आज तक आप सोच रहे हैं कि चल रहा है, ऑन दीज पर्टिकुलर ग्राउंड्स द नोटिफिकेशन में भी चैलेंज, बट अनलेस द नोटिफिकेशन इज चैलेंज, the time limit which has been provided to the officer to adjudicate till 31st December, it is a valid timeline. So 17-18 का जो adjudication है वो 31 दिसंबर 2023 तक हो सकता है। मतलब आपका जो लास्ट शो कॉज इशू होगा 17-18 का नॉर्मल कोर्स में, अदर देन फ्रॉड, वो कब तक इशू हो सकता है? वो हो सकता है 30 सितंबर 2023 तक, और विद इन 3 मंथ्स उसको एडजुडिकेट करना पड़े। तो 17-18 का लास्ट जो आपका शो कॉज नोटिस इशू होगा वो 30 सितंबर 2023 को होगा, इफ इट इज नॉट अ केस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सर। सो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, राइट सर। any further questions on this part? सुरेश जी, any amnesty आपने जो छोड़ी हो? मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ रहा, फिर भी आप देख लेते। वैसे मुझे लग रहा है कि कवरेज तो हुई है, बाकी आप बताएं। नहीं, मेरे हिसाब से भी आपने कुछ नहीं। आई जस्ट वांटेड टू रीचेक विद यू। एनी अदर मेंबर, कोई भी क्वेरी किसी भी पार्ट के ऊपर अगर किसी मेंबर की, अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड टुडे? सुरेश जी, सुरेश बत्रा जी। हाँ सर, गौरव जी, मेरी क्वेरी ये है कि जो फाइनल रिटर्न के लिए एमनेस्टी स्कीम आई है वो है, अगर मेरी रजिस्ट्रेशन 21-22 तक, 31 मार्च 22 तक कैंसिल हो गई है, तो अगर जो केसेस हैं जून में, सपोजिंगली जून 22 को कैंसिल हुआ है, उसके लिए कोई एमनेस्टी नहीं है 21-22 के बाद, जिसको भी थोड़ा ही टाइम हुआ है, उसमें पूरी पेनल्टी देनी पड़ेगी मुझे अगर मैं फाइनल रिटर्न भरता हूँ? नहीं, जो एनुअल रिटर्न की एमनेस्टी है सुरेश जी, उसके अंदर ये है कि 21-22 तक जो कैंसिल हो चुके हैं, जो नोटिफिकेशन कह रहा है। सुरेश जी, एक बार ये क्वेश्चन प्लीज आप देखना पड़ेगा मुझे, एक बार दोबारा देख के मैं सर्कुलेट कर दूंगा अपने ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। 22 तक जो कैंसिल हुए हैं उनके लिए एमनेस्टी स्कीम है, उसके बाद वालों के लिए जो मैंने समझा है, तो जरा इसको क्लियर कर दीजिए, बाद में कोई देख लीजिए आप। इसको एक बार नोटिफिकेशन को देखना पड़ेगा, मैं देख के फिर बताता हूँ, ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। हाँ ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर। राइट सर। आदेश जी प्लीज सर, आपका क्वेश्चन। सर सुरेश जी से मेरा क्वेश्चन है सर, रिवोकेशन के बाद 3B की पेनल्टी एज इट इज है, उसमें कोई रिलीफ है? पुरानी रेट में फाइल करेंगे तो कैंसिलेशन डेट से रिवोकेशन डेट तक नहीं, लेट फीस पे कोई इम्यूनिटी नहीं है। लेट फीस तो प्रॉपर जैसे चल रही है वही लगनी है। लेट फीस देनी है, इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है। रेवोकेशन की एमनेस्टी है, बाकी टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस की कोई एमनेस्टी नहीं है। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा जसपाल जी से। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस सर। हेलो सर, पुरानी रिजीम के अंदर 5 लाख से ऊपर यदि किसी की इनकम 5,01,000 होती थी तो पूरा टैक्स देना पड़ता था। क्या न्यू रिजीम में कोई रिलीफ है या पूरा वो एज इट इज ही है? सर 87A का जो रिबेट है वो मिलेगा। 87A का रिबेट अप टू 7 लाख तक है सर। यस। उसके बाद यदि किसी की इनकम 7,02,000 है तो एज इट इज? नहीं सर, एज इट इज देना पड़ेगा, उसके अंदर कोई रिलीफ नहीं है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो रिलीफ एक्ट में आएगा, बट वो नहीं आया।
पूरा हाँ, देना। वो मैंने भी कहीं पढ़ा था सर उसी रिलीफ के बारे में पूछी। नहीं, अभी दैट नहीं वाज आया। एक्सपेक्टेड, वेरी मच एक्सपेक्टेड, रिप्रेजेंटेशंस वर आल्सो फाइल्ड, बट वो अभी रिलैक्सेशन नहीं दिया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Navratan ji, आपने रेज करा हैंड, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और वी प्लीज कंक्लूड फॉर टुडे? सर एक क्वेश्चन था सुरेश जी से। जी प्लीज। जो बैक डेट में कैंसिल हुई है रजिस्ट्रेशन जैसे कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया और उन्होंने बैक डेट से अप्लाई कैंसिल कर दिया, तो क्या वो भी इसमें कवर हो रहे हैं क्या? हाँ, इसमें सभी कवर हो रहे हैं। किसी अगर आपका लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से है, अगर आपका रीजन कोई और है तो बात अलग है। आपका अगर आपने 6 महीने तक रिटर्न नहीं डाली, 3 महीने जो शेड्यूल टाइम पर जो आपने रिटर्न डिफॉल्टर के बेस पे आपका कैंसिलेशन है, तो वो इस पे कवरेज है। नॉट बाकी लेट वाली फाइलिंग, नहीं, बोगस अगर वो बोगस वाली थी या वो वाली परचेज के ऊपर कैंसिलेशन कर दिया तो वो मेरे हिसाब से समनेस्टी में कवरेज नहीं है, नहीं है, वो वाली नहीं है। अगर उसकी आप बात कर रहे हैं जो कि बोगस परचेसेस की वजह से आरसी कैंसिल किए गए हैं। नहीं, वी सुमो टू अप्लाई, भी हमने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, हाँ, और असेसिंग ऑथोरिटी ने उसको बैक डेट से कैंसिल दिखा दिया इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं, ये तो अपीलेट का मैटर बनेगा आपका, जहां तक मेरे को समझ में आता है कि ये जो अपील तो हमने डाल ही रखी है, नो डाउट। हाँ, तो ये जो रिवोकेशन का पॉइंट दिया है, इन्होंने ये लिखा है कि जो टाइम से उसको रिवोकेशन को विद इन परमिटेड टाइम रिवोकेशन के लिए नहीं आ सके, ये उसके लिए है। और ये मैनुअल फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, और या उस पे पोर्टल पोर्टल के ऊपर फैसिलिटी है। तो होगी नहीं ना सर, क्योंकि वो तो सस्पेंड कर रखा है। नहीं, सस्पेंशन कर रखा है, लेकिन वो जो आज भी मैंने देखा था किसी क्लाइंट के लिए कि जो यूजर सर्विसेज में जाते हैं तो रेवोकेशन एप्लीकेशन का सेपरेट कॉलम है, उसको जब हम एक्टिव करते हैं तो एक्टिव हो जाता है सरेंडर आरसी होने के बावजूद भी। बस पहले तक कि वो 3 महीने बाद नहीं खुलता था, वो 3 महीने बाद भी खुलेगा। अच्छा, लिंक जो है पहले वो बंद कर देते थे 3 महीने के बाद, अब वो खुलेगा क्योंकि एमनेस्टी आ गई है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सुरेश जी, एक क्वेश्चन जो उसमें आया है, what are the consequences for non-filing of declaration by transporter if he wants to change to forward charge? क्योंकि ये साल शुरू होने से पहले फाइल करना होता है, तो इसके बारे में जरा आप जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि विद इन टाइम आपको 31 मार्च से पहले वो स्पेसिफिक डेक्लेरेशन एनेक्चर 4 या 5 जो भी था वो फाइल करना था, 5 तभी आप उस फॉरवर्ड स्कीम में जा सकते थे। अगर किसी वजह से वो डेडलाइन निकल गई तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपके रेसिपिएंट को आरसीएम में जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो ऑप्शन ली नहीं फॉरवर्ड चार्ज वाली। ये मेरी सोच है। अगर आप एज ए ट्रांसपोर्टर उसको लेना चाहते थे उस फीचर्स को, तो आपको टाइम लिमिट में आपको काम करना था और एनेक्चर 5 देना चाहिए था। I think I am with Suresh ji because you cannot do away with the entire procedure. जो प्रोसीजर है वो आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी सेंसिटिव। अगर आपको एक टाइमलाइन दी गई है, सपोज कंपोजिशन ऑप्टेन करने की, रेट चेंज करने की, आई डोंट थिंक कोर्ट्स विल अलाउ assessee who is not working within timeline. But yes, I'm just putting a small rider because अभी बहुत सारे recent decisions आए थे। अगर कोई extraordinary circumstance था which prevented the person from filing, was an aged person, he was ill, he was under some proceedings where he was unable to attend the office, he was under some financial distress, any such reason which can demonstrate that there was a grave incapacity on the part of the person to file this form, I think या वो ट्राई करा था लेकिन ग्लिचिंग की वजह से नहीं कर पाया था। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई जना जीएसटीएन की टेक्निकल ग्लिच मत लेकर आइए, क्योंकि बहुत लोगों ने फाइल कराई। चलिए, आई थिंक विद दिस we had a very good session. I would request Suresh ji to present the vote of thanks on behalf of the society. Suresh ji, over to you, sir. Thank you, गौरव जी। जैसा कि आज हमने शेड्यूल टाइम पर परसों ही इसको सोचा और आज हमने इसको कर दिया, और हमारे सभी मेंबर काफी जुड़े। More than 50 participant has participated in this webinar.
और जैसा हमें शेड्यूल मिला, हमने एमनेस्टी स्कीम को भी डिस्कस किया, इनकम टैक्स की अपडेट्स को भी डिस्कस किया, केस लॉस को भी डिस्कस किया, और आगे फिर हमने 2 दिन बाद वो भी रखा है। मैं सभी अपने भाइयों का, जो हमारे स्पीकर भाई रहे, अपने दोस्त रहे, प्लस अपने सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा जो मनोबल बढ़ाया कि टाइम से आ गए और टाइम पे हमें सुनते भी रहे और हमारे वेबिनार को अटेंड किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिए और हमारे वेबिनार को इसी तरीके से एक्टिव रखिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह की जो भी अपडेट्स हैं उसको अपने वेबिनार के थ्रू और फिजिकल मीटिंग के थ्रू भी आप तक पहुंचाया जाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी मेंबर की कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। सुरेश जी, मैं, जसपाल जी, मनोज जी और भी जितने लर्नड एक्सपर्ट्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको एड्रेस कर दें। सो विद दीज वर्ड्स आई थिंक सुरेश जी, विद वी कैन कंक्लूड टुडेस प्रोसीडिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।